Gentlemen, good morning, ladies and gentlemen. Anupama again. Anupama, are you there? And Sudeep and Jitendra Kesarwani. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon to you all. I just would like to brief before I hand over to Dr. Babulal. He is already here, and he has been experimenting this, and he will be taking your paper 6 presentation skills, right? And after that, you will have paper 7 and paper 8. We have, as usual, as we did in the first semester, we will have 4 paper in this semester also. And generally, as per the routine plan ISTD Noida chapter, we plan to undertake all 4 classes in a day, starting from 10 o'clock till 5:30, right? With the half an hour break in between. And for the class, basically we have distributed so that in June tentatively, with the exam time is given, before that we are in a position to transfer the complete syllabus, cover the complete syllabus. So we have one class in the March. Hello, are you getting? So your voice breaking. Are you getting? Hello. I think my internet is getting little shaky. Are you able to listen? My name is Dr. Babulal. I was with BHEL as Executive Director, Learning and Development. Hope my voice is clear, video is clear. Yes, sir. Yes, And, sir. Are you able to see the presentation also? No, sir. Presentation we are not able to see. Presentation you are not able to see. Okay. So let me Verma just. sir is the host. Unless he transfers the hosting right to you, your screen will not be shared. No, I think I'm back. Are you getting me? Yeah. Yeah. So I think my internet also gets some problem in between. So I will transfer host to Dr. Babulal. He will be taking your class further, right, sir? Yeah. Are Yeah. you Yeah. getting Please. me? I will Yes, sir. Yes, transfer sir. the host to you, and Right, then sir. Right, sir. we'll Please do. proceed. I think Okay. all things are okay, fine, and then we'll talk in the next class. Right. Your class will continue till 1:30, sir. 1:30. Right? Okay. Wonderful. Wonderful. Very nice. Okay. See you at around 1:30. We'll get transferred. Right. Right, sir. Thank you, sir. I hand over to you. So are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So let me see what is there on the screen. One minute. So are you in a position to see this screen of my camera? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Wonderful. So the today's session is presentation skills. So this is the paper 6, and out of the first
module which we will be covering today is session planning. But before we really go to this particular topic, I will request each one of you to briefly introduce yourself. So we can start with one of the participants, and then gradually everybody can briefly introduce himself. Yes, sir. Good afternoon. My name is Jitendra and I'm from Lucknow. Okay. I have around 15 years of experience in training and development. Currently Mhm. working with the Himalaya Drug Company as a zonal training manager and heading UP and Uttarakhand. Okay, so you are a veteran training man. Wonderful, You very can say nice. as a born trainer, sir. Starting from Okay, graduate till now. okay, wonderful, Dr. very nice. Babulal, may I request you can switch on your video, please. Your video is off. Video is off. Actually, Just his maybe presentation is showing. Left side, there is a video button. You can switch on. So now I think my video is on, isn't it? No, sir. No, sir. No, it is not yet. Actually, there is some issue regarding network connectivity. Where is this issue with my connectivity? No, everybody, I think, Sir, is even Lucknow, from last 3 Yeah. days, storm and raining was happening. Okay, and you as such said morning class you could not. Yes, sir. attend. Yes, sir. Yes, sir. I think I there was was sitting some issue. from 9:15 a.m. to till now, but I Very was missed peculiar the kind first of issue. This, Bandwidth is very low. Yeah, that's right. Dr. Babulal, are you there? Yeah, I am there and I am able to see you, but somehow I don't know why my video is not starting. Sir, left side there is a stop. ನೀವು sir, there is a mic and after that there is a start video. Yeah. Start video. You can press start video and it should come. But I don't know why it is not coming. Your this. Anyway, during my this presentation, they will be able to see my face. So I don't think that should be a big issue. No problem, sir. You can go ahead. Right. We can go ahead. So Mr. Jitendra has introduced himself. Then we can request the next participant. Hello. Yes, sir. Myself is Rupesh Rai, and Right. I'm an HR professional and working with a logistic company as a HR Okay. professional. So training is a part of my curriculum. I mean, definitely we impart training and organize trainings. So training is basically your additional responsibility in addition to Yes, your HR yes. functions. Yes. Okay. And how much is the experience in that 20, training? 20 plus years in HR. Oh, great. So you all are veterans. Wonderful. Very nice. And your key expectations also, if you can tell me, I think that will help from definitely. this particular session. Just I wanted to learn tools and techniques about training and development. That's why I joined this organization. Okay. So is this particular session, what is your expectation? Presentation is skill. The paper is presentation is definitely we are. I mean, as a we want to be as a trainer, so definitely it's a important component of this training. Correct. So here in this case, we are talking of session planning. So Yes. this is part of your presentation skills. So Yes. what is your expectation or what do you really understand about this session planning? Briefly, if you can tell, others can also listen your viewpoint. In my opinion, session planning, I mean, what we have planned for that particular, so what are the key components to, what are the key components we have to, I mean, we have to focus on. Right. For training. Okay, wonderful. Anupama is there, I think. Sir, good afternoon. I am Sudeep Jaiswal. हाँ जी सुदीप जी बताइए. Sir, this is
I'm an HR professional. I'll be completing 25 years in this profession this year. Okay. Started my career from a public sector undertaking, NTPC Limited, Very wonderful. So And you then- all are. power sector. Yeah. Mhm. So then moved on to Delhi Airport, then Honda motorcycle, and then finally to TNT. So I have experience of working both in PSU as well as Indian as well as multinational companies. And for the last about 11 years, I am a freelance HR professional. So training and development forms a major chunk of my endeavor. Mhm. The reason I joined this course is basically, see, we do a lot of things we learn in the process, but there was no systematic, Structured course that inputs. we Yes. undertook. So Mhm. what I am doing is basically organizing what I have been doing for the last so many years, and having giving it a definite shape in the form of the learnings that I'll be gathering from my study course. My expectation from the session is to learn, what part of a training is important, but how is I feel more important than what part, because how we design the training, the whole content, whether it is taken by the participants or not, is purely dependent on how we actually do it. Wonderful. Very That's nice. what my focus will be to learn. Okay. Thank you, Sudeep ji. Thank you, sir. Then I think Anupama is also there. Yes, Sandhya. Good afternoon, sir. So I'm working with LIC based in Hyderabad at present. I have around 28 years experience in LIC, 4 years before that in a bank. So all told around 32 years of experience. Of course, training, this is the first time I'm involved with HRD. I have been part of training in as divisional head, means in divisional departments, but this is the formal training aspect. So yes, I would like to learn more about how to go about things. Yes, that's all. Because they have got long experience and they are deeply interested in the subject. That's why they are doing this formal diploma program. Yes. Absolutely right, अभी basically क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं है. We all are professionals and collectively we will learn from each other. Yes, sir. Yes. Okay, everybody has got a rich experience in the field of training. Yeah, So definitely, before sir. that, I would like to just show my video is, I think, visible. So my name is Dr. Babu Lal. I retired as executive director from BHEL. And I was taking care of the Corporate Learning and Development Institute. I'm basically a graduate electrical engineer, did my MTech in industrial engineering, and then PhD from IIT Delhi in the area of strategic management. Then I was exposed to a specialized one-year program named Visionary Leader for Manufacturing. Besides that, I am also one of the director for the GIFT School of Organization Learning and Strategic Transformation, then member of
governing council of various sector skill councils. Then member board of education, Lloyd School. Presently, I am also associated as a chairman of one training institute. And then champion of change in Niti Aayog. So this is a broad area where I have really worked. BHEL was given a check of about 1.8 crores for providing maximum number of apprentice training under the NAPS scheme. This is another appreciation given to BHEL for in the area of training and development. This is the Munjal award which our company received. This is some award from NHRDN for writing a business case. This is a public sector scope award given to BHEL. This was one training intervention which we introduced when company was passing through a difficult phase. So this is a resilient leadership program, and you know the faculties which we invited. This gentleman was in the Navy. He had experience in deep diving into the sea, and then he went along with the Navy team to the top of Himalayan. So how to bounce back from a difficult active, and this program was basically meant for people who are in the grade of DGMs and AGMs. Am I able to communicate, or are you able to listen me? Yes, sir. Very nice. So this is the Global School of Flexible Systems Management. I'm one of the member of the governing council. This is on balance scorecard. This photograph you might have already Mr. seen. Patnaik. Yeah, Patnaik, wonderful. Correct. So this is a brief background of mine, but we all are, at the same footing. This is another area. Just you know, BHEL was passing through a very difficult phase, particularly in the thermal business. So how to diversify or how to look for new areas? So we invited a very renowned faculty, Sri Anish Dey, the future of power distribution opportunities. So how the new businesses opportunities are coming, and now you can see e-mobility is becoming the most happening things. Even companies like IOCL or NTPC, everybody is now going for e-mobility charging stations. So this is going to be a big business, and I think oil sector companies are finding very, very difficult in surviving today's time. This was another. So I keep on giving lectures here and there. So leadership for future ready organizations. This was another training session taken for IOCL induction level people. So this is again, on future proofing the organizations. And besides that, I'm also associated with the Niti Aayog as champion of change. So I keep on interacting with various students from the school level. Most of my time, I spent looking after the operations of the company before taking over as general manager at HRD or corporate learning and development. So I have visited all parts of the company and the operations review, visiting with the high level dignitaries like ministers and all those things. So in this particular review, I am with the CMD.
4 papers. So one of the paper is presentation skills, presentation and communication skill. That is the right word for this. So this is paper 6. So I will be devoting my time with you for paper 6. So the first session of today is how to plan a session. Then the second is communication skills. Then icebreakers, then selection of audio video aids, and then how to use this audio video aids, and designing and developing activities for training. And then finally we will just review the total course and how you can really prepare for your exams. The 2 reference books which ISTD has prescribed are one minute. One is by Dr. Janki Raman and another is Agochia book. So chapter 7 and 8 and chapter 6 and 8. I'll request you read them thoroughly. It will be very much helpful and useful. So say we are all in professional training, and any company who is in the business, any resource consumed or utilized must give value to the company, right? Right, sir. ये कोई खेलने के लिए वो नहीं है, ये बेसिकली जितना भी जो L&D के इंटरवेंशंस होते हैं, ये बेसिकली आप देखोगे कि इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रनिंग बिजनेस. Right, So sir. we are equal partner in the business. So कभी भी पहले तो मेरा सबमिशन आप सब लोगों के लिए यही होगा कि नेवर कंसीडर किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ए सेकेंडरी डिपार्टमेंट. आज के टाइम में पर्टिकुलरली व्हेन द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट, डिसरप्शंस आर हैपनिंग, तो द रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादातर केसेस में ये देखने में है. Sorry sir, the presentation is not visible. अच्छा, आपका फोन एक रीस्टार्ट मिनट. होने का ये आ रहा था सिग्नल. I can see you now. अच्छा, यू कैन सी मी नाउ. ओके, तो उसको अभी आया. सब मोबाइल का दिखा रहा है. अभी आ गया लगता है. हाँ अभी आ गया. Yes, yes. हाँ. Much easier. तो सबसे पहले तो ये है कि मैं सिंस हैंड्स ऑन मेरा एक्सपीरियंस है एंड मैं डायरेक्टली ऑपरेशंस से सीएलडी या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में गया था, तो आई हैड ए वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, कंपनी का बिजनेस चलता कैसे है, वो पूरा मेरे बिल्कुल आप ये देखोगे कि नर्वस सिस्टम के अंदर डीपली एम्बेडेड था. तो मैं इवन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाने के बावजूद भी कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना, कंपनी के हर पार्ट में. एंड सिंस मैं जीएम के बाद आई वाज प्रमोटेड टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और वो आपको देखो पता होगा जितने भी पीएसयूज में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट बहुत लिमिटेड होती हैं. तो आई यूज टू गेट ए चांस टू अटेंड द मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग which was exclusively for chairman, EDs, और जो कुछ एक स्पेसिफिकली इनवाइटेड पर्सन जो किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं. एंड उस बॉडी का काम ये था कि हाउ टू रन द कंपनी मोर इफेक्टिवली, हाउ टू डेवलप पॉलिसीज, और कोई ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको कलेक्टिवली कैसे ये किया जाए. तो हमारी कंपनी में उस टाइम सीएमडी का बहुत बड़ा फोकस था कि भाई सीएलडी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. तो इन लोगों को कम से कम ईडी लेवल का इंडिपेंडेंट पोस्ट, आप ये देखेंगे कि एचआर एक अलग फंक्शन था, देयर यूज्ड टू बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचआर एंड देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लर्निंग एंड डेवलपमेंट. तो आजकल इस पीरियड के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और ये बीएचईएल में नहीं, आप देखोगे इवन एनटीपीसी के अंदर भी एक ईडी लेवल की पोस्ट होती है. मिलिट्री में आप देखोगे कि
दो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को देखते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस है। ये आप लोगों को बहुत अंदर से बिठा कर रहना चाहिए कि, और इसलिए यू मस्ट टेक इट वेरी सीरियसली। जब मेरे को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ट्रांसफर किया तो पीपल सेड कि यार वेरी सॉरी यार, तुमको तो उधर भेज दिया और साइडलाइन हो गए। बट आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि यार ये तो बड़ा मौका है। ये और इनफैक्ट इस फंक्शन की जो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इवन आफ्टर रिटायरमेंट आप करेंसी में रहते हैं, और किसी डिपार्टमेंट में इतना वो नहीं है। इसमें तो आप क्या है कि जो आपकी टाइम बीतता जाता है, उम्र बीतती जाती है, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, राइट? आपको ऐसा लगता है? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको लगता है कि भाई ये फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो आपका टाइम लगता है, बीतता चला जाता है, यू बिकम मोर एंड मोर वैल्यूएबल। Definitely, sir. ये इस फंक्शन की सबसे बड़ी खासियत है। Sir Jiten this side. हाँ, So whatever the function is going on in the organization or outside the organization, training is a permanent activity which is going on continuous basis. वंडरफुल, Either the employee is new, either he is going to be on board, either he has been prepared for the next level, either he has ready to take an assignment as a national level or international level. So training must be required for every level of employees, and as well as the social organization and outside the organization as well. बिल्कुल। और आजकल क्या हो गया कि आपने बहुत ही सही कहा कि, और आजकल के टाइम में क्या है कि जो डिसरप्शन और रेट ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इतने फास्ट हो रहे हैं, नए नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, तो असिस्टेड ट्रेनिंग की बहुत जरूरी है। पहले के टाइम में क्या था, चेंज इतना फास्ट नहीं था, तो लोग धीरे धीरे भी सीख लेते थे। तो आप देखोगे कि पूरे ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में ट्रेनिंग वाज पार्ट ऑफ HR फंक्शन का एक पार्ट होता था। उसमें भी कोई DGM लेवल का, मैनेजर लेवल का कोई ट्रेनिंग को देखता था। बट आजकल क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग एक बहुत सीनियर लेवल के आदमी को जिम्मेवार बनाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है। तो सिंस ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो वी एज L&D पीपल और ट्रेनिंग पीपल, वी मस्ट अलाइन आवर ट्रेनिंग objectives with the organizational goals and objectives. तो जब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप कोई भी इंटरवेंशन उससे अलाइन नहीं कर सकते। तो दिस अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप आज स्पेसिफिक मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि भाई जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे इकोसिस्टम को, पूरे बिजनेस सिस्टम को आप अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग तभी इफेक्टिव ट्रेनिंग हो सकती है। अदरवाइज आप बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बुला सकते हो, ट्रेनर्स बुला सकते हो, वो अच्छी तालियां बजा देंगे, अच्छे मिमिक्री करेंगे, अच्छा बहुत ही मतलब उस टाइम आपको एक बहुत बढ़िया फील गुड फैक्टर आएगा कि यार क्या ट्रेनर है, क्या बढ़िया लगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि वो बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए। तो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए हम लोगों ने BHEL में भी एक ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था, जिसके लिए बाद में हम लोगों को अवार्ड भी मिला। तो TNI जिसको बोलते हैं, और उसमें हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि हाउ वी मस्ट आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ ऑल द, स्टार्ट किया था ऑफिसर लेवल पे। तो BHEL में आप देखोगे अबाउट 11,000 ऑफिसर्स होते हैं, मोस्टली इंजीनियर्स। तो हर आदमी से ट्रेनिंग नीड लेकर के कोलेक्ट करके एंड देन डेवलपिंग प्रोग्राम्स टू फुलफिल दोज नीड्स। एक तो होता है कि यार कोई भी एक प्रोग्राम चल रहा है हम भी कर देते हैं, एक है कि अलाइनिंग ट्रेनिंग विद द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉर्पोरेट L&D का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव में एक सिंक होना बहुत जरूरी है। और कॉर्पोरेट L&D बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप करोगे तो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव इट मस्ट मैच विद द L&D ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। और ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सो मेनी सेशंस।
तो सेशन जितने सारे होते हैं, जैसे अब आपने देखा हुआ कि एक पेपर 6 के अंदर 6-7 मॉड्यूल्स हैं, तो सेशन 6 का एक ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव में आपका सेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो दिस मस्ट बी फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर 6. तो हियर सेशन ऑब्जेक्टिव मस्ट बी फुल्ली अलाइंड विद द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. जैसे 3 दिन का कोई प्रोग्राम है, तो एक सेशन आपने प्लान किया, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई इसमें ओवरऑल इंटेंशन क्या है, इसके कौन कौन दूसरे स्पीकर्स हैं, वो किस सब्जेक्ट पे बोलेंगे, ताकि आपका उसमें फुल्ली सिनर्जी आ जाए एंड फुल्ली इंटीग्रेशन हो. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब किसी भी सेशन के अंदर बेसिकली देयर आर 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. कि पहले तो है कि इस सेशन के अंदर व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, क्योंकि एक्टिविटी जब परफॉर्म करोगे तभी तो सेशन का कोई न कोई जो ऑब्जेक्टिव है मीट कर पाओगे. तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो एक्शन क्या क्या होंगे, तो व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव उसका क्या है. कहीं पे प्योरली आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, तो हो सकता है लेक्चरिंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, और उसमें बीच में आप थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर दें, इंटरेक्शन बढ़ा दें. बट यदि मान लो आपका कोई बहुत डीपर कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट है, तो हो सकता है केस स्टडी में बी ए मच बेटर ऑप्शन. क्योंकि केस स्टडी में क्या है कि आपके पार्टिसिपेंट्स को आप उस रियल लाइफ सिचुएशन का केस आप देते हो, वो उसको पढ़ते हैं एंड देन दे डेलिब्रेट. तो इसमें क्या है कि डीपर डायनेमिक एंगेजमेंट ऑफ द ट्रेनर्स इज देयर. कहीं पे हो सकता है कि आपको रोल प्ले का ज्यादा बिफिटिंग हो. जो रेजिलिएंट लीडरशिप का जो प्रोग्राम जैसे हमने बीएचएल में किया था, तो हमने फैकल्टी कैसी चूज की कि आप देखोगे हिमालयन के टाइम जब क्लाइंब करते हैं तो बहुत ही रफ वेदर होता है. तो जो लोग उस रफ वेदर को फेस करके और टॉप ऑफ द हिमालय जाते हैं, तो वो कैसा फील करते हैं, तो उन लोगों को हमने इसमें स्पेसिफिकली बुलवाया और फिर एक दिन का पूरा रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, वो फील देने के लिए धौलाकुआ के पास एक एकेडमी है जो माउंटेनियरिंग एकेडमी एंड क्लब है. तो वहां पे सो मेनी फैसिलिटीज आर देयर. तो वहां पे पूरे दिन ग्रुप को डिफरेंट एक्सरसाइजेज वर कैरिड आउट एंड देन अगेन ये लर्निंग्स क्या थे, बिजनेस से रिलेटेड लर्निंग थी. ये नहीं कि इट वाज जस्ट फॉर फन एंड गेम. फन एंड गेम वाज देयर, बट पूरा फोकस और पूरा ध्यान क्या था इसके ऊपर था कि भैया रेजिलियंस कैसे लाया जाए ऑर्गेनाइजेशन में. क्योंकि बीएचएल का आप देखोगे 50,000 का टर्नओवर करने के बाद वी केम डाउन टू 32,000, देन 28,000, 26,000. तो ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा था कि यार पूरा मामला गड़बड़ हो गया है. और उसके बाद फिर देयर वाज ए बाउंसिंग बैक. ऑर्गेनाइजेशन ने फिर प्रॉफिट भी कमाया. अदरवाइज जब 26,000 का टर्नओवर हमारा हो गया था, तो 10,000 करोड़ के पीबीटी से वी केम डाउन टू ए लॉस. तो उस टाइम ये इस तरह के इंटरवेंशन. सो इंटरवेंशन कौन सा करना है, कैसा करना है, दैट इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और ये पूरे मैनेजमेंट के साथ डेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है. तो इसमें आप देखोगे कि कोई भी सेशन प्लान करो तो आप ओवरऑल जो ट्रेनिंग का डायरेक्टर है जो, और वो फिर यूजर से इनपुट्स लेके कि भाई आप लोगों को किस तरह के नीड चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, और उसी के हिसाब से आपका सेशन की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए. तो एक तो आ गया एक्टिविटीज टू परफॉर्म, और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए ये आपको आइडेंटिफाई करना है. हो सकता है कहीं पे आपको ऑडियो विजुअल की जरूरत हो सकता है कहीं पे गेमिफिकेशन की हो, कहीं पे कंप्यूटर गेम्स की हो, कहीं पे फील्ड लेवल गेम्स की हो. तो ये रिसोर्सेस आपको किस तरह के चाहिए, ये सारे की सारी चीजें आपको अप फ्रंट डिसाइड करनी पड़ती है. क्योंकि ऐसा नहीं कि सेशन आपने प्लान कर लिया और फिर देखें कि यार ये चीज नहीं है, ये रिसोर्स नहीं है, ये हेल्प अवेलेबल नहीं है. और ये ए और बी का होल पर्पस, सिंगुलर पर्पस ये है
to guide a group or learners towards a specific learning objective. तो आजकल आपने देखा होगा ना कि कॉम्पिटेंस बेस्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस तरह की कॉम्पिटेंसी चाहिए। उस कॉम्पिटेंसी में आप देखोगे कि भाई इंडिविजुअल का उस कॉम्पिटेंसी में किस लेवल पे है। यदि 5 की स्केल है तो वो 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, और फिर उसके हिसाब से उसके लिए टेलर्ड ट्रेनिंग आपने डिजाइन करनी होती है। तो अलाइनिंग सेशन ऑब्जेक्टिव विद द ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम का ओवरऑल कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशनल L&D का, और अल्टीमेटली इट मस्ट इनेबल कंपनी टू परफॉर्म बेटर। ये ओवरऑल आपका ये है। वुड एनीबॉडी लाइक टू ऐड समथिंग मोर टू दिस? सुदीप जी आप कुछ बताइए, देखें। ऐसा सफिशिएंट है इसके अलावा। नहीं, आपको और क्या लगता है कि भाई इसमें और क्या चीज का कंपोनेंट मिसिंग है, क्या चीज होनी चाहिए? मिसिंग तो कुछ नहीं है सर, आई थिंक इट कवर्स अच्छा। द एस्पेक्ट्स वेल। जी जी जी। और रूपेश राय साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप लॉजिस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं तो, और लंबा एक्सपीरियंस आपका 20 इयर्स का, और बीएचईएल में तो लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है, पर्टिकुलरली Yes, जो sir. हमारे जो टर्बाइन जनरेटर्स होते हैं, ये बहुत ही ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट्स होते हैं, ओडीसी कंसाइनमेंट जिसको बोलते हैं। राइट सर, राइट सर। तो वहां पे आप देखोगे कि अब 32 ये आपके चक्के के ट्रेलर्स होते हैं बड़े बड़े, और बहुत लंबा चौड़ा कंसाइनमेंट्स होता है और पूरी क्रू चलती है। आप देखोगे पहले रूट सर्वे होता है। हाँ नहीं सर, एक्चुअली हम लोग की कंपनी एक्चुअली ट्रेन ऑपरेशंस में थी सर, तो इट वाज आई मीन बिग वो, और एवरी क्वार्टर हम लोग ट्रेनिंग कराते थे फ्रॉम रेलवे पीपल से, आई मीन जो रेलवे के रिटायर्ड एंड वो लोग थे ऑपरेशंस में। ओके यूज्ड ओके। टू डू दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग सो दैट की टेक्निकल चीजें एंड मतलब एग्जैक्ट नो हाउ क्या है वो लोगों को पता लगे। बताते थे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो तो इसमें आप लोगों के हिसाब से जब आप कहते हो कि सेशन प्लानिंग के अंदर सबसे पहले है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सेशन ऑब्जेक्टिव, यस तो इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे आप, या कुछ आपने कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे ताकि बाकी के पार्टिसिपेंट्स के लिए भी इट बिकम्स ए गुड लर्निंग ग्राउंड? या डेफिनेटली सर, सेशन में हम लोग का मेन वो रहता था बिकॉज द टॉपिक इज वेरी आई मीन बोरिंग, यू कैन से, आई मीन रेलवे के ऑपरेशंस से, तो उसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाने के लिए हम लोग सेशन को बड़ा शॉर्ट रखते थे, मतलब हाँ, हाफ एक ये आवर। बहुत बड़ी का है कि एक मोनोटोनी को ब्रेक करना बहुत यस जरूरी है, क्योंकि यस मैनी यस, टाइम्स क्या होता है कि बहुत से टॉपिक बोरिंग हो जाते हैं। राइट सर। तो उसमें मोनोटोनी कैसे ब्रेक की जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें एक जो बड़ी चीज ये है कि किसी भी, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स की कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। राइट आप यहाँ पे भी देखोगे कि यू हैपन टू बी ए स्टूडेंट, बट प्रैक्टिकली आप हर आदमी का एक्सपीरियंस 20 साल का है। यस तो यू आर ए प्रोफेशनल एंड यू कैरी रिच एक्सपीरियंस। राइट सर। तो वहां पे एक इसका जो आपका एक पेपर होता है फैसिलिटेशन स्किल जिसको कहते हैं। तो यस फैसिलिटेशन स्किल्स का मतलब हाउ टू ब्रिंग आउट बेस्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। या दैट इज द वहां मेन पे भी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ओवरऑल ग्रुप का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं है। जैसे आपने Right. किसी खास टॉपिक पे कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे आपने कोई वर्कशॉप कर रहे हो, तो एक फैसिलिटेटर का रोल क्या है कि हर आदमी से एक्सट्रैक्ट करे Yes, और yes. उसको पूरे को सिनर्जी दे करके, और एक ओवरऑल जैसे होता है ना फूलों का गुलदस्ता होता है, तो सारे इस तरह से प्लेस करो कि फूलों का गुलदस्ता अपने आप में देखने में सुंदर लगे। Right, sir. तो Right, sir. हाउ टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ द पीपल एंड देन उसको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करना। Right, sir. वेरी राइट। इसके बाद अभी हम अनुपमा जी कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी लंबा एक्सपीरियंस है सर अनुपमा जी। हेलो हेलो।
आई थिंक अनुपमा जी क्या म्यूट पे चले गए, क्या है? She is not responding. लग रहा She है। is not responding. ओके, तो इसमें एक देखो, ये जो आपका डिस्टेंस लर्निंग का अभी आपने देखा कि एडवांटेज है, तो इसके साथ डिसएडवांटेज भी बहुत बड़ा हो जाता है। Right, sir. हम लोग क्या है, ज्यादातर केसेस में सेशन में लॉग इन कर दिया, उसके बाद घर में रहते हैं, तो घर में आप दूसरे काम में लग गए, या यदि ऑफिस में है तो ऑफिस में भी आपके एक बॉस ने बुला लिया और कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आ गया, तो आपको लगता है कि तो हमारा उतना 100% अटेंशन नहीं दे पाते। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। तो क्योंकि हम लोग सारे के सारे ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो व्हेनेवर वी डिजाइन ट्रेनिंग इंटरवेंशन, तो इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसके एडवांटेज है, तो देयर आर लिमिटेशंस आल्सो। No, sir, this is the principle of adult education actually. कि adult will हाँ। learn only when they feel that they need to learn. That is the problem actually. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और संध्या जी, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, कुछ आप बताएंगे? No, sir, nothing to add, sir. Okay. हाँ, Nothing to चलिए। add. I don't have anything to add. करेक्ट, I think, sir. वंडरफुल। तो अब हम आते हैं कि इसके जो बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, वो हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेजर की कंपोनेंट्स जब आप किसी सेशन को प्लान कर रहे हैं। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये भी मैंने बहुत ही सीजन्ड ट्रेनर्स है उनके रिसोर्सेज से लिया है। तो ये है कि गैदरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि जब भी कोई सेशन आप प्लान करो, तो ये नहीं कि यार आपको टॉपिक दिया एंड यू जस्ट इमीडिएटली गेट डाउन टू द टॉपिक। आप ये देखो कि भाई इसको अटेंड करने वाले कौन है। यदि प्योरली स्टूडेंट लेवल के बच्चे हैं, स्कूल्स या कॉलेजेस से हैं, तो आपका जो डिलीवरी मैकेनिज्म और कंटेंट मैकेनिज्म विल बी एंटायरली डिफरेंट। तब आप उनको क्या है, बेसिक से बात करेंगे, उनको बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे। बट अब जैसे इस ग्रुप के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये ग्रुप तो ऑलरेडी इतना सीजन्ड है, ऑलरेडी नॉलेजेबल है, इतने विजनरी और विजडम वाले लोग हैं, तो इनको बेसिक समझाने का तो कोई मतलब नहीं। इनसे तो इंटरेक्ट करके और कोई खास एक दो की कंसेप्ट यदि ड्राइव इन कर दिए होम, तो आई थिंक वी हैव डन ए वंडर। Yes, sir. और दूसरा ये है कि आपका सेशन ओवरऑल प्रोग्राम में कहां फिट हो रहा है। अब जैसे मान लो आपने कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, अब उसके अंदर देयर विल बी सम 4 or 5 स्पीकर्स। ऐसा ना हो कि जैसे आप यहाँ पे माइकल पोर्टर का मॉडल एक बता रहे हो और उसको इतना डिटेल में बता दो, और दूसरा सेशन ऑलरेडी माइकल पोर्टर के मॉडल को 5 फोर्स मॉडल है, या उसका कॉस्ट लीडरशिप, और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो किसी एक स्पीकर को आपने बुला रखा है, वो टोटली डेडिकेटेड टू आपका 5 फोर्स मॉडल पे है, तो आप भी उसको बता दो, और बाद में दूसरा वाला, तो दूसरे वाला को फिर क्या कहेंगे, यार ये तो रिपीट हो रहा है। तो यू मस्ट वेरी केयरफुली लुक एट द ओवरऑल प्रोग्राम डिजाइन, जिसमें आपका एक वन ऑफ द सेशन है। ए प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सो मेनी सेशंस। तो आप ये देखिएगा कि भाई कौन लोग इसमें फैकल्टी हैं, वो क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई चीज रिपीट हो। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। दूसरा ये भी देखिएगा कि भाई आपके जो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने यदि आपका कोई लेक्चर पहले से किया हो, तो ऐसा नहीं हो कि भाई वही केस स्टडी आप दोबारा उनको शेयर करो। तो जिसने ऑलरेडी आपकी केस स्टडी देखी हुई है, तो वो ही विल स्टार्ट फीलिंग बोर्ड कि यार ये तो सेम चीज पढ़ा रहा है, ये तो स्टीरियोटाइप हो गया, मोनोटोनस हो गया, ये चलेगा नहीं। तो इसलिए आप ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए
आपका जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है या प्रोग्राम डायरेक्टर है उससे पहले थोड़ा सा इंटरेक्ट करके, जैसे मैंने भी आप लोगों का प्रोग्राम शुरू होने से पहले वर्मा जी से पूछा भाई कौन कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ हैं, कितने लोग हैं, तो उन्होंने बताया सर टोटल 4 ही लोग हैं, और ब्रीफली बैकग्राउंड क्या है। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से इंडिविजुअली सबसे ये बात किया कि भाई आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है। तो द होल पर्पज ऑफ इंटरेक्शन वाज, एक तो आपस में रेपो बिल्डिंग हो गया, यू नो मी बेटर, मैंने बहुत सारे विजुअल्स दिखाए। पर्पज ये नहीं था कि मैं अपने कोई विशेष अचीवमेंट्स को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट पर्पज इज की टू गिव एन ओवरऑल व्यू अबाउट माई सेल्फ, कि मेरा एक्सपोजर किस तरह के फील्ड में ज्यादा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव और आपका सेशन का ऑब्जेक्टिव उससे कैसे मैरी कर रहा है। और दूसरा यह है कि पर्पज यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एंटरटेनमेंट क्रिएट करना है प्रोग्राम के थ्रू, बट एज यू हैव वेरी राइटली सेड, आप ही लोगों ने कहा कि यदि प्रोग्राम बोरिंग होगा तो थोड़ी देर में क्या होगा, लोग बाग या तो सोने में चले जाएंगे या फिर क्या होगा, वो हिबरनेशन मोड में चले जाएंगे, या ऑनलाइन वाला है तो ऑन करके वो अपने किसी दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे। तो इन सब को मोनोटोनी तोड़ने के लिए वी मस्ट मेक प्रोग्राम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। अब आप देखोगे कि जितने भी जो टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें क्या होगा कि सम कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन लैब या रियल लाइफ केसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करना एक तरह से बहुत जरूरी है। और मैं ये आपको बताऊं कि जब मैं 10th क्लास का जब साइंस का पेपर था, मैंने जब एग्जाम दिया तो मुझे कोई बहुत ज्यादा लिखना वगैरह, आई एम नॉट वेरी गुड एट राइटिंग वेरी लेंथी थिंग्स। अब बाकी के बच्चे जो थे कोई 2 कॉपी ले रहा है, 3 कॉपी ले रहा है, और मेरी तो आधी कॉपी नहीं भर रही थी। आई वाज अंडर ए काइंड ऑफ डिप्रेशन एग्जामिनेशन हॉल में, यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। बट मैंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो देयर वर 3 थिंग्स व्हिच आई डिड, और जो बाद में मैंने रिफ्लेक्ट किया ना कि मेरे इतने अच्छे नंबर क्यों आए, मेरे 50 में से 49 नंबर आ गए, यू वोंट बिलीव। मुझे अभी भी ताजुब होता है वो मेरे कैसे आए। तो बहुत क्लियर डेफिनेशन। उसके बाद आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, बट हर एग्जाम उसमें एक ड्राइंग देना या एक थ्रू विजुअल चीजों को, कंसेप्ट को समझाना। यदि आपका यदि हैंडीकैप है लैंग्वेज और बहुत अच्छी हिंदी अंग्रेजी नहीं आती, तो आई थिंक ड्राइंग के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को समझा सकते हो। दूसरा था कि साइंस के अंदर जितने भी फार्मूले होते हैं तो उसमें जहां पे भी फार्मूले की जरूरत होती है, इक्वेशन कोई दिखानी है। प्लस तीसरा ये था एग्जाम्पल्स, तो जाके आपकी डिलीवरी बहुत इफेक्टिव हो जाती है। टीचर को भी किसी इतना टाइम नहीं होता यार आपका पूरी चीज पढ़े, यदि 3 चीजें उसको लग गया तो फटाफट 10 में से 10 नंबर दे देगा। एंड दैट्स हाउ आई थिंक आई गॉट द मैक्सिमम मार्क्स इन माय साइंस सब्जेक्ट। तो सेम हियर कि आपको इफेक्टिव डिलीवरी करनी है तो उन लोग जो पार्टिसिपेंट्स के लिए बेस्ट मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, और उस टाइप के कंटेंट के लिए या उस तरह के जो सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए किस तरह की चीज हो सकती है। यदि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है तो आप करो, फिर उसके बाद में क्या है कि आप एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स लोगों से खुद करवाइए, देन यू विल फाइंड कि उनको एक तो जो नॉलेज है इट विल सीप इनटू देयर मसल मेमोरी। प्रैक्टिस करने से चीजें ये आती हैं। एचआर के जितने जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होते हैं, इंटरप्ले ज्यादा होते हैं, तो रोल प्लेइंग का एक बहुत बड़ा ये हो सकता है। आप सीनियर उनको बताइए कि यू आर नाउ द मैनेजर एंड दिस इज द सिचुएशन। अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे करोगे, ये सिचुएशन आ गई, यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हाउ विल यू हैंडल इट। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और ये हर टेक्निक हर सिचुएशन के लिए इफेक्टिव हो सकती है। ये नहीं कि कोई दुनिया में बहुत अच्छी एक टेक्निक का काम चल रहा है तो यू स्टार्ट जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट टेक्निक।
जहां चाकू की जरूरत है वहां चाकू, जहां तलवार है, जहां पे तोप की जरूरत है वहां तोप। ये नहीं कि हर जगह तोप लगा दोगे। देखा वो ना, अपने ब्रह्मास्त्र को कभी कभार यूज करते हैं, ब्रह्मास्त्र हर दिन नहीं लगाते। Right, sir. तो सेम वे हियर आल्सो, कि टूल्स एंड टेक्निक्स का बुके आपके पास एक पूरा आर्सनल भरा रहेगा, बट कौन सा टूल, कौन सी टेक्निक, कौन सी चीज आपको इस्तेमाल करनी है, ये आपके जो प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है कि नहीं सर? Yes, sir. सेशन ऑब्जेक्टिव्स का हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया ही है कि इसमें सेशन ऑब्जेक्टिव मस्ट बी फुल्ली इन ट्यून और इन सिंक विद द ओवरऑल प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। और प्रोग्राम का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी जो प्रोग्राम डायरेक्टर है उनको मैं बार बार, जब बीएचएल में था तो यही कहा जाता था कि भैया आप ये देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन नीड के हिसाब से। मैं अब एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि जब हमारे जो सीएमडी मिस्टर अतुल सोपती, वो मेरे बैच के थे एंड ये गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो ही बिकेम सीएमडी ऑफ बीएचईएल। तब उन्होंने कहा कि यार काफी टाइम से हमने टॉप मैनेजमेंट को कोई अच्छे प्रोग्राम्स नहीं कराए, तो आई वाज गिवन द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स फॉर जनरल मैनेजर्स, वो भी हैंड पिक जनरल मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्लांट हेड्स वगैरह के लिए। तो आप बेस्ट इंस्टीट्यूट का देखो, वहां पे ये प्रोग्राम होना चाहिए हमारा 2 वीक्स का। तो पहले हमने क्राइटेरिया बनाया, तो क्राइटेरिया इस तरह से बनाया कि भाई उसमें टॉप इंस्टीट्यूट ही क्वालिफाई हो। तो 21 का सर्टिफिकेशन होता है, कि एमएचआरडी का एक रैंकिंग वगैरह होता है। तो इशारा कर करके 3 कंपनी हमारी शॉर्टलिस्ट हुई, 3 जो इंस्टीट्यूट, जिसमें IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता। टेंडर वगैरह बुलाया, तो फिर IIM अहमदाबाद ने कहा कि हम तो टेंडर वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फाइनली 2 बचे, और फिर दूसरे ने कहा कि इतनी हमारे पास बैंडविड्थ नहीं, क्योंकि हमने कहा कि इतने सारे लोगों का अबाउट कितना 200 लोगों का एक साल के अंदर ट्रेनिंग होना था। तो IIM कलकत्ता ने प्रोग्राम हमारा एक्सेप्ट किया, 1.5 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट था। जब उसका रियली जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना, यू वॉन्ट बिलीव, सीएमडी हिमसेल्फ सेट कि इसमें कंटेंट क्या क्या होना चाहिए। तो उन दिनों हमारे पास एक सीएमडी का जो 9 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन था, तो उसमें उन्होंने असर्टिव कम्युनिकेशन कई तरह के होते हैं, तो असर्टिव कम्युनिकेशन उन्होंने जब लोगों से इंटरेक्ट किया तो ये पता चला कि भाई बीएचईएल इज नॉट असर्टिव आइदर विद द कस्टमर्स और इवन विद द वेंडर्स। और असर्टिव का मतलब ये नहीं कि भाई कोई इंपोज करना, बट असर्टिव का मतलब अपने व्यू पॉइंट्स को आप विद फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दूसरे के सामने पेश करो। तो एरोगेंस भी नहीं झलके, बट एट द सेम टाइम ये नहीं कि यू आर सीन एज ए वेरी वीक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस मॉड्यूल को भाई तुमने कितना टाइम दिया है, कौन इसकी फैकल्टी होगी, तो सीएमडी गिविंग his own time in designing the program. Purpose was कि ये प्रोग्राम जो आज कंपनी की जो नीड है उसके हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस विच टॉप मैनेजमेंट मस्ट गिव, तब जाके ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस होती है। तो वो फिर हर एक मॉड्यूल को हमने उनके हिसाब से डिस्कस करने के बाद, एंड देन वी डिस्कस विद द फैकल्टीज ऑफ IIMs कि इस पूरे उसमें this should be the broad content and how this should be delivered. तो सेशन ऑब्जेक्टिव की जब बात आती तो each session was individually deliberated and whether it is linked with the organizational need. अब ये आता है कि डिसाइडिंग सेट ऑफ एक्टिविटीज, इसमें अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका क्लासरूम में भी प्रोग्राम्स होगा, तो बहुत 15-20 मिनट के बाद लोगों में क्या होगा, नींद की झपकी आनी शुरू हो जाएगी, बोरिंग फील हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आप अपने कोई ग्रुप बना दिया, गिव देम असाइनमेंट,
तो इमीडिएटली एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट उनमें जगना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे गेम्स होते हैं जो पेपर वगैरह के, कि कोई आप इससे आप एक सेट ऑफ एक्टिविटीज कैरी आउट करो, तो एक्टिविटी बेस्ड चीजें कैसे बनाया जाए जहां पे मोनोटोनी को ब्रेक करे, और फिर उन एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करिए। और रिफ्लेक्शन में ये पूरा का उसका आउटकम है, वो मेन प्रोग्राम के हिसाब से उसका ब्रीफिंग होनी चाहिए। जो डीब्रीफिंग एस्पेक्ट है, दैट मस्ट बी फुल्ली इन लाइन विद द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें अचीवमेंट मोटिवेशन का जैसे प्रोग्राम होगा, तो कुछ रिंग्स दे देंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव दे देंगे, और वहां पे उन रिंग्स को आपको फेंकना है। तो देखने में लगा यार क्या है, तो बच्चों का खेल है, क्या रिंग फेंकवा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। बट जब उसके बाद उसके स्कोर को आएंगे तो एनालाइज करेंगे, तो कहेंगे कि भाई जिन लोगों ने बहुत ही लो लेवल के टारगेट रखे उन्होंने हाई टारगेट नहीं रखे, जिन्होंने बहुत हाई रखे वो रियलिस्टिक नहीं थे, जिन्होंने बीच के से रखे दे कुड अचीव। तो इसका मतलब टारगेट सेटिंग शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि जो कि रियलाइजेबल हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो। तो इस तरह से उन चीजों को फिर उस एक्टिविटी के थ्रू रीएनफोर्स करते हैं। तो यही आपकी ट्रेनिंग के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि छोटे छोटे गेमिफिकेशन कैसे लिया जाए, कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशंस का कैसे इस्तेमाल किया जाए। आजकल तो क्या है, कंप्यूटर के ऊपर इतने सारे गेमिफिकेशन हो सकते हैं, तो यू कैन रियली मेक ए प्रोग्राम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस कम्स अंडर द सेट ऑफ एक्टिविटीज, किस तरह से करनी है और कौन सी एक्टिविटी किस में करेगी, ये आपकी ओवर ए पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से आप धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे डॉक्टर होता है, एक पेशेंट उनके पास जाता है, तो जैसा पेशेंट होगा उसके हिसाब से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेंज होता है थोड़ा बहुत। ये नहीं कि हर पेशेंट के लिए सेम उनका प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। कोई बहुत ही वीक है तो उसको हो सकता है स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं देगा, उसको पहले धीरे धीरे एटलीस्ट उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड करके एंड देन जो मेडिकेशन करना है। तो सेम इज ट्रू विद द ट्रेनिंग। फिर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज कैसा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, शुरू में आप देखोगे कि कई लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट या छोटा सा गेम खिलाएंगे ताकि ग्रुप एक तरह से पूरा का पूरा ग्रुप चार्ज हो जाए, जो शुरू में इसको आइस ब्रेकिंग भी बोलते हैं। तो ये सारा करने के बाद फिर धीरे 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 आप इंडिविजुअल्स के व्यू पॉइंट्स लेते हो, उनको समराइज करने के बाद एंड देन व्हेन द ग्रुप होल ग्रुप इज प्रिपेयर्ड, फिर जाके आप यू स्टार्ट डीप डाइविंग टू द कंसेप्ट। फिर उसके बाद आप छोटे छोटे एग्जांपल्स और छोटे इंटरवेंशंस के थ्रू समराइज करते हैं, और फिर उनसे जब प्रोग्राम खत्म होने पे आता है तो उनसे एक्शन पॉइंट्स मांगते हैं कि भाई ये प्रोग्राम तो हो गया, अब व्हाट इज टेक अवे। तो वैलिडेशन के टाइम सीनियर पर्सन कोई भी होगा, जैसे एचआरडी का होगा, हम लोग क्या थे, कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता था तो उसमें डायरेक्टर्स को बुला लेते थे, प्रोग्राम के बिगनिंग में भी डायरेक्टर्स को बुलाते थे ताकि दे शेयर द की चैलेंजेस या की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस प्रोग्राम। कंपनी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कंपनी को क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो प्रोग्राम के बिगनिंग में भी आप सीनियर लेवल के लोग बुला सकते हो। इसी तरह से हम लोग नॉट ओनली बीएचईएल, जैसे पीजीसीआईएल के किसी सीनियर अफसर को बुला लिया, कभी एनटीपीसी के किसी सीनियर अफसर को बुला लिया, कभी दिल्ली मेट्रो के ये बना लिया। तो पर्पज इज कि दे कम विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद देम। तो ये प्रोग्राम्स को इफेक्टिव करने के बहुत सारे आपके तरीके हो सकते हैं। कभी किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हो सो दैट दे गेट ए एक्सपर्ट्स ओपिनियन। तो ये सारी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखो ना, जो खास करके जो पार्टीज होती हैं, आपका 7 कोर्स मील होता है, 5 कोर्स मील होता है, तो कौन सी चीज को कब सर्व किया जाए। बिगिनिंग में सूप के, ऐसा तो नहीं कि खाने के बीच में सूप सर्व करते हैं। तो सेम इज ट्रू विद द ट्रेनिंग। फिर उसके बाद ये गैगने ब्रिग्स मॉडल है, इसके कुछ कंपोनेंट्स अभी अपन लोग देखेंगे। देन डिसाइडिंग फिजिकल सेटिंग और रूम लेआउट, ये बहुत जरूरी है।
पता चला कि अभी ये प्रोग्राम तो हमारा हो रहा है, बट वी आर नॉट एबल टू सी द विजुअल प्रेजेंटेशन, वी आर नॉट एबल टू लिसन द वॉइस, तो प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस नहीं होगी। सबने पूरी मेहनत की, आपने भी अपना टाइम दिया, हमने भी टाइम दिया, प्रिपरेशन भी किया, बट एट द एंड ऑफ द डे जो डिजायर्ड आउटकम नहीं आ रहा। तो फिजिकल सेटिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास के अंदर, पता चला कि रूम की साइज जितनी चाहिए उससे ज्यादा आपने पार्टिसिपेंट्स बिठा दिए, आपका ऑडियो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लाइटिंग पुअर है। तो ये छोटी छोटी चीजें, बट दे मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन मेकिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव। देन गेम्स, कौन से वाले गेम्स चाहिए? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स गेम आपने बना दिया तो भी इट विल सर्व द पर्पस। बहुत रूडिमेंट्री बना दिया तो पार्टिसिपेंट कहेंगे यार क्या बेकार का है, ये तो बच्चों का खेल है। फिर उसके बाद आप बीच बीच में छोटे छोटे असेसमेंट्स करते रहिए, दैट आल्सो मेक्स डिफरेंस। और फिर प्रोग्राम के प्लानिंग स्टेज पे आप ये देखो कि भाई पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। जैसे अब आप लोग भी हैं तो आप एक पॉसिबल क्वेश्चन हमने ये सोचा कि भाई आप ये पूछ सकते हो आपने बीएचएल में किस तरह के इंटरवेंशंस किए और दूसरी जगह कैसे इंटरवेंशंस होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको पहले से प्लान करके रखनी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ गया और सडनली आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, एटलीस्ट माइंडसेट ही नहीं बनाया। एंड देन फाइनली हाउ डू वी इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का 20-25 साल का एक्सपीरियंस सभी लोगों का है, तो इसमें आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट 1 or 2 इनपुट्स फ्रॉम योर एंड सर। हाँ जी, कौन बोलेंगे? रूपेश राय साहब बोलेंगे? यस सर। हाँ बताइए सर, इसमें क्या मतलब इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि सबसे बड़ा ये चैलेंज यही आता है कि कंपनी भी लोगों को नॉमिनेट कर देती है, लोग आ भी जाते हैं, प्रोग्राम में आने के बाद उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको कैसे इंश्योर करें? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सर जो फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, जो क्लासरूम ट्रेनिंग हम लोग करते थे या कराते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, तो इन दैट डेफिनेटली कुछ गेम्स और कुछ एक्टिविटीज और फेस टू फेस जब इंटरेक्शन होता था तो इट वाज आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। बट अभी क्या है जूम्स पे सर, इट्स वेरी चैलेंजिंग आई मीन फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो देखिए अब हमने क्या क्या जैसे अब सोचा कि यार ये बाकी के लोग रियली एक्टिवली इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, कैसा है, तो आप बीच बीच में इस तरह के, हाँ बट एटलीस्ट ये जो छोटे तौर पे क्या है कि उनको बीच बीच में आप प्रोग्राम के अंदर ट्राई टू सक इन देम बैक। या डेफिनेटली सर। अब जैसे मोमेंट आपसे पूछा तक तो क्या है कि आपको यदि नींद है वो नींद भी भाग जाएगी, आप अलर्ट हो जाएंगे और आपका थिंकिंग मोड में वापस आ जाएंगे। राइट है कि नहीं? तो ये तो आपने बहुत बताया कि एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप छोटे छोटे प्रोग्राम, जब 10 मिनट के प्रोग्राम के बाद कोई क्विज आप शुरू कर दो। yes, कोई डेफिनेशन पूछो कि भाई ये चीज है तो इस सिचुएशन में आप क्या करते, मिस्टर एक्स आप क्या करेंगे, मिस्टर वाई क्या करेंगे। बट होना क्या चाहिए कि इट मस्ट रिवॉल्व अराउंड द सेशन ओनली। ये नहीं कि आप सेशन के बाहर नहीं जा सकते, वो आपकी लक्ष्मण रेखा है कि आपने जो भी चीजें करनी है इट मस्ट फुलफिल द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन। ये आपके लिए वो है। तो जितेंद्र जी आप कुछ बताइए सर। जितेंद्र सर, क्या जितेंद्र जी नहीं है क्या? नहीं, ये डिस्कनेक्ट हो गया, इनका नहीं है। अच्छा, तो सुदीप जी आप कुछ बताएं सर। यस सर, एक्चुअली नॉर्मली जो मैं करता हूँ, हाँ जी हाँ जी, इनोवेटिव गेम्स के थ्रू आई ट्राई टू ड्राइव इन द मैसेज। बहुत बढ़िया, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। और जो लर्निंग है वो मैं नहीं बोलता हूँ, आई डिराइव इट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। जूम में जैसे ये होता है, परेशानी तो होती है, बट व्हाट आई डू इज डिवाइड द ग्रुप्स इनटू जो छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड करके
सबका डिफरेंट असाइनमेंट देके एंड देन वी कोलेट। परेशानी होती है क्योंकि नया सिस्टम है, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बट बिल्कुल, इसमें अभी भी थोड़ा जैसे आप देखो कि But ये डिफरेंट that is डिफरेंट रूम्स possible. होते हैं, वो रूम्स अलोकेट कर दो, एक हाँ। ग्रुप का लिए एक रूम, दूसरे में दूसरा रूम, तीसरे में हम्म। तीसरा रूम, और हाँ। फिर ये हर एक रूम में आप बीच बीच में जा भी सकते हैं। जा भी और सकते उसके हैं। बाद पूरा का पूरा ग्रुप को वो लोग, भाई ये ग्रुप अब अपना फाइंडिंग्स है या क्या डेलिब्रेशंस हैं, क्या डिस्कशंस हैं, ये प्रेजेंट करेगा। हाँ। तो इसमें आपने इतना सुंदर बात कही है कि एक तो क्या है कि सेंस ऑफ एनरोलमेंट हो जाता है जी। और अडल्ट लर्निंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि जब तक आपने उनको इन्वॉल्व नहीं किया ना, वो थोड़ी देर में बिल्कुल स्लीप मोड में चले जाएंगे और बाद में फीडबैक भी ये दे देंगे कि यार ये प्रोग्राम तो बिल्कुल बोरिंग था। बेकार है, इसको तो कुछ भी नहीं है, जबकि उस बेचारे ने पूरी मेहनत कर ली एग्जैक्टली। और उसकी रेटिंग भी नेगेटिव होगी। तो आपको पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करना तो बहुत जरूरी है। और ये क्या है कि सडनली आप ट्रेनिंग में आ गए और फिर सोचो कि मैं प्लान करूं, ये ऐसा होता नहीं। वो नहीं होता। जैसे बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले आर्किटेक्ट आपका पूरा का पूरा मैप नक्शा बनाता है, जिसमें कहाँ किचन होगी, ये वास्तु के हिसाब से है कि नहीं, इसमें लाइट आ रही कि नहीं आ रही, वेंटिलेशन का मेथड है कि नहीं है। तो जस्ट लाइक यू डिजाइन ए हाउस, कंस्ट्रक्शन से पहले का चीज है ये। तो सेशन प्लानिंग बिगिंस बिफोर एक्चुअल सेशन स्टार्ट्स हैपनिंग। ये अप फ्रंट प्लानिंग है ये। मानते कि नहीं मानते इस बात को? बिल्कुल सर। और जितना टाइम इसमें डिवोट कर लोगे ना, आपकी डिलीवरी उतनी ही आसान, उतनी सुंदर और उतनी बढ़िया हो जाएगी। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। आप उसमें थोड़ा बहुत ऐड डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। इसमें एक चीज और ये है सर, जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं कई सारी कंपनी में, स्पेशली पीएसयू में मैंने देखा है कि लास्ट मोमेंट में बहुत सारे नॉमिनेशंस आते हैं एंड यू डोंट नो हू द पार्टिसिपेंट इज। उसमें बहुत परेशानी आती है। तो एलिमिनेट करने के लिए मैं मतलब आई हैव डिजाइन्ड अ क्वेश्चनर सॉर्ट ऑफ थिंग। I try to gather maximum possible information about the participants. बहुत बढ़िया। ये जो आपने कहा ना कि गैदरिंग एडिशनल एनालाइजिंग आइडियंस, ये जो फर्स्ट के 2 कंपोनेंट आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी क्या है कि बंदों का लेवल ऑफ नॉलेज कितना है। अब आप हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बीएचएल में जब किए तो काफी टेक्निकल प्रोग्राम्स भी किए, तो उसमें हमने आईआईटी के प्रोफेसर्स को भी बुलाया। अब एक प्रोग्राम में तो ऐसा हुआ, ये जो डिसीजन साइंस से रिलेटेड था, तो उसका फीडबैक 100 में से 33 नंबर इस तरह के नंबर मिले। तो उसको बाद में एनालिसिस पूरे ग्रुप के साथ डेलिब्रेट किया, तो मैंने कहा यार 33 लायक तो ये नहीं है, आईआईटी में प्रोफेसर कुछ तो है ही उसमें। तो उसका था क्या कि जिस तरह से वो डिलीवर कर रहा था, उसने क्या वो थीटा बीटा और ये जो कॉम्प्लेक्स फार्मूला से चालू कर दिया। अब हम लोग अपने लेवल के हो सकता है कि यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, बट आज की डेट में थीटा बीटा गामा देख करके तो पसीने आ जाते हैं। मतलब इन स्पाइट ऑफ डूइंग माय पीएचडी, ये थीटा बीटा गामा इज वेरी स्केरी। तो वहां तो उसका एनालिसिस ये लगा कि भाई जो पार्टिसिपेंट्स की जो नॉलेज थी और वो जो डिलीवर कर रहा था, देयर वाज ए वाइड गैप। एग्जैक्टली। तो वो क्या हुआ कि प्रॉपर ढंग से कैलिब्रेट नहीं हुई चीजें, या तो हमने उसको प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया, या वो सोचा कि यार मेरे को जब आया हूं तो मेरे को अपना कुछ दिखाना चाहिए कि मेरे को इतनी नॉलेज है। कई बार क्या होता है कि इवन ट्रेनर भी अपनी नॉलेज को और अपनी स्टाइल को और अपने स्किल को दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा दे जाता है, जो कि नॉट रिक्वायर्ड। तो इस तरह की इशू बहुत सारे आ जाते हैं। बट इट वाज ए वंडरफुल इनपुट फ्रॉम योर साइड। और संध्या जी आप कुछ बताएंगे मैम? Not much, sir. Just I would like to add कि अभी ये कोरोना के चलते हमारे काफी प्रोग्राम्स, काफी नहीं, almost 100% programs have been online. So I had one observer. I was in a session which was conducted by an outside faculty. उन्होंने बहुत ही effective ढंग से role play करवाया in an online session, which for me was very surprising. So I thought it is not possible to do a role play in a thing.
and it was possible, and he was able to do it very effectively, and that created a lot of interest. So it made the session very interesting. lively. So, Correct. so you can use, so when you say that we are using games or this one, so even in online when it is possible, I think that helps. हाँ, डेफिनेटली. अभी तो क्या है कि आपका वीडियो की क्लैरिटी भी अच्छी होगी, ऑडियो भी ठीक हो गया, एंड देन वी हैव बिकम हैबिचुअल. अभी तो क्या शुरू में तो जूम वगैरह जब यूज करते थे तो आपको कौन सा बटन कहाँ पे, इवन दैट इटसेल्फ, तो लॉट ऑफ रोड ब्लॉक्स यूज्ड टू बी देयर. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि इस पे इट विल बी वेरी इफेक्टिव. और टेक्नोलॉजी जैसे AR और VR वगैरह आ जाएगा ना, या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, देन यू विल सी द गेमिफिकेशन का कंपोनेंट बहुत बढ़ जाएगा, एंड देन दिस ट्रेनिंग्स विल बी वेरी इफेक्टिव. तो हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रेनिंग का चलेगा ये. और ISTD के कुछ ट्रेनर में भी जैसे जूम प्लेटफॉर्म में ही ब्रेकआउट रूम्स का कॉन्सेप्ट यूज करके, तो हाँ, जो अभी बता रहे थे, बिल्कुल. हाँ, तो सिंडिकेट सेशंस फिजिकली is different, but breakout rooms maybe it is very effective. So I found that also to be very effective. वो भी कर सकते हैं. हाँ, ये concept of breakout rooms का प्लान किया जा सकता है nowadays, particularly when people are delivering trainings online ना, तो आपके सेशन प्लानिंग में ब्रेकआउट रूम्स का कंसेप्ट डेफिनेटली बिल्ड किया जा सकता है, particularly when group size is 30-40 लोगों की हो जाती है, तो एट ए टाइम 30-40 को आप हैंडल नहीं कर सकते. तो व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड इज आप छोटे-छोटे 5-6 लोगों का एक टीम बना करके यू गिव स्पेसिफिक असाइनमेंट्स, और एक अच्छा ये चीज निकल के आ सकता है. So that way everyone gets a chance to participate. Last time it was done. बहुत बढ़िया. Last time it was done, sir. First semester we have seen. ये ब्रेकआउट का कंसेप्ट. हाँ, yes sir, and we should make the session. हाँ, बट वो होता क्या है ना कि आपका ग्रुप साइज ही जब आपके ग्रुप ही 4-5 का है, हाँ 4-5 में नॉट तो क्या है कि हाँ, तो उस केस में आप सोचो कि ब्रेकआउट करें तो आप एक लोगों को ब्रेकआउट रूम में बिठाओगे तो वो आएगा. तो इसलिए सी ये टूल्स आपके हैं, बट टूल्स को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन प्लानिंग फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये सारा हम लोग ये बात कर ही रहे हैं, तो दिस इज ऑलरेडी वी हैव कवर्ड. और भी कोई तरीका हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट का. कई बार क्या होता है कि इवन ग्रुप की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने से पहले, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले, देयर आर फैकल्टीज जो क्या करती हैं कि पहले से कोर्स मटेरियल भेज देंगे, कुछ असाइनमेंट्स भेज देंगे, और वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो असाइनमेंट्स उनसे मंगवा लेते हैं. तो आपका क्या है कि सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है. और फिर उसके बाद इवन प्रोग्राम होने के बाद भी आप अपने वर्क प्लेस पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. आपने देखा होगा, आप सारे TND से हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्शन प्लान. एक्शन प्लान में भी इसको 2-3 लेवल पे होता है कि इमीडिएटली आप जाते क्या करेंगे, 3 महीने बाद क्या करेंगे, फिर इसकी रिपोर्ट बनाइए. इस रिपोर्ट को आप अपने HOD से या अपने मैनेजर से वेट करा करके आप हम लोगों को भेजिए. फिर हम लोग क्या करते थे कि इसको बीच बीच के अंदर फॉलो अप करते थे, क्योंकि जाने के बाद तो हर आदमी अपने काम में बिजी हो जाता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिवर्ट बैक. बट द पर्पज पूरा इसका क्या था कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यदि वो इसी सब्जेक्ट पे और कंसेप्ट पे डीपली इन्वॉल्व रहेगा, तो इट विल, द आइडिया विल सेट इन इनटू हिज माइंड. तो ये हो सकता है कि प्री प्रोग्राम एंड पोस्ट प्रोग्राम में किस तरह के इंटरवेंशंस आप प्लान कर रहे हो. तो इसमें ये एक बहुत बड़ी चीज है. और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टास्क उनको दे दोगे, उन्हीं से पूछे भाई आप इस जो लर्निंग हुई इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है ना सर. उसके बाद यह है कि भाई आप प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस के लिए किस तरह के क्राइटेरिया आप डिसाइड करेंगे. कोई भी प्रोग्राम आपने हुआ तो उसका कितना इफेक्टिवनेस रही. तो इफेक्टिवनेस का कैसे जो असेसमेंट होते हैं उसके लिए
कोई न कोई क्राइटेरिया तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना आपको। तो उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसने कैसे ड्राइव किया, तो कोई क्विज के थ्रू, कोई असाइनमेंट के थ्रू आप टेस्ट ले लो, कोई रियल लाइफ सिचुएशन उसको दे दो। सेट ऑफ ग्रुप, जैसे बीएचएल में लोग आते थे तो एक यूनिट के 4-5 लोग आए, उनको एक असाइनमेंट दे दिया कि अब 15 डेज के बाद यू गिव योर रिपोर्ट टू अस। तो दैट्स हाउ आप इस तरह के क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हो। देन फाइनली प्लानिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि अल्टीमेटली इसको हम लोग 2 लेवल पे करते थे बीएचएल में। एक तो यह है कि भाई आपने कितना ग्रास्प किया, लोगों को जाने से पहले पूछते थे भाई की लर्निंग्स क्या रही आपकी, और दूसरा यह था कि आप इस लर्निंग को अपने ग्रुप्स में कैसे डिसमिनेट करेंगे। तो यू बी ए फैकल्टी एंड शेयर वट एवर इनपुट्स यू आर कैरिंग विद यू टू योर ग्रुप एट योर वर्क प्लेस। तो ये एक तरीका हो सकता था। और क्या तरीका हो सकता है कि भाई ट्रेनिंग तो हो गई, अब वेदर उसने वास्तव में इंटेंडेड लर्निंग हुई कि नहीं हुई, तो उसको कैसे इफेक्टिवनेस बढ़ाई जाए, कुछ बताइए सर। उसमें तो इवैल्यूएशन, फर्स्ट वी डू इवैल्यूएट द सेशन। हाँ, ये तो एक सबसे वो है कि भाई हर सेशन के बाद आप इवैल्यूएशन करते हैं, और इवैल्यूएशन आप देखोगे सेशन के बाद कभी भी प्लान करो तो इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनर एज वेल एज द ट्रेनी, ये फीडबैक का पार्ट हमेशा होना चाहिए कि प्रोग्राम डिलीवर करने वाले की इफेक्टिवनेस कैसे रही, एट द सेम टाइम लर्नर की इफेक्टिवनेस कैसे रही, उसने रियली कुछ सीखा कि नहीं, उसका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन कितना रहा। और ये फीडबैक देके, और सी पर्पज हम लोगों का यहाँ पे कोई डिग्री अवार्ड करना भी नहीं है, हमारा पर्पज तो लोगों की अवेयरनेस, लोगों के नॉलेज, लोगों का जो गैप्स है, स्किल गैप्स को दूर करना है। तो आजकल के मॉडर्न टाइम में कंसेप्ट ये है नहीं कि किसी को नीचा दिखाना है हमारा पर्पज, वो बिल्कुल भी नहीं है। ये एज ए ट्रेनर हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। हर आदमी यदि इतनी बड़ी कंपनियों को ज्वाइन किया है तो उनमें कुछ तो है, तभी वो यहाँ पे तक आए हैं। अब यदि किसी कारणवश वो नहीं सीख पाया और उसका जो इंटेंडेड लर्निंग होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, तो हम लोगों को इवन वो वर्क प्लेस पे जाने के बावजूद भी कुछ आर्टिकल भेजिए, कभी उसको रिफ्रेशिंग इनपुट दीजिए, कभी उससे कोई असाइनमेंट उसके बॉस को इन्वॉल्व करिएगा, सो दैट उसका वो जो डेफिशिएंसी इन स्किल है वो कम कर पाए। ये हमारा प्राइमरी मुद्दा ये है कि हाउ टू रियली रिड्यूस द डेफिशिएंसी इन द स्किल गैप, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के रिजल्ट लोगों की कॉम्पिटेंसी आती है। आपने सीके प्रहलाद का देखा होगा ना, कोर कॉम्पिटेंसी का कंसेप्ट था, तो उसमें यही बोलता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट ए सेट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज व्हिच हैव बीन बिल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो जिसमें जितनी कॉम्पिटेंसी होगी वही ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो आवर पर्पज एज ए टीएनडी टीम्स कि लोगों की कॉम्पिटेंसी कैसे बनाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए। और ऐसे ही जैसे सेशन में भी आपने देखा होगा कि पूरा प्रोग्राम में 4 सेशन में से पता चला 2 सेशन से लोगों ने बिल्कुल सीखा ही नहीं, तो 2 सेशन भी इनकम्प्लीट रह जाएंगे, क्योंकि ये चारों सेशन यदि ढंग से पकड़ उसको सीख के जाएगा तो उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट अच्छी बनेगी। तो वी हैव टू एंश्योर कि ईच सेशन पीपल डू grasp, to enjoy and engage maximum। ये सारा एस्पेक्ट हम लोगों को पूरे बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे, चलेंगे सर। एक्चुअली द मेन पर्पज इज टू आई मीन केएसए का ही रहता है, जो नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। हाँ, तो राइट सीक्वेंस जो होनी चाहिए वो दैट इज फर्स्ट एटीट्यूड, देन नॉलेज, देन स्किल। बिल्कुल, क्योंकि इन तीनों के बिना या कई बार क्या होता है, ऐसे नॉलेजेबल होते हैं लेकिन कितने नेगेटिव लोग हो जाएंगे कि वो किसी काम को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो फर्स्ट वी शुड हर चीज में उनको नुक्ताचीनी करेंगे और इतना ज्ञानी होते हैं बस। तो आपने इतना जो केएसए का मॉडल जो आपने बताया ना, आई थिंक इट्स परफेक्ट। डॉक्टर नॉलेज भी चाहिए। यस सर, सॉरी टू डिस्टर्ब,
I think Jitender is waiting to get connected. You Okay, must have तो received his connect invite. 1 मिनट में देख Please लेते हैं सर क्या allow him. डेफिनेटली सर डेफिनेटली हाँ. जितेंद्र जी कहाँ चले गए थे हमारे Must be coming on the screen. Participants. Jitender add. हाँ. हाँ हो गया सर हो गया Right. Continue, please. Sorry to disturb. हाँ तो अब जैसे ये जो 9 एलिमेंट्स ये जो ब्रिग्स मॉडल है इसको थोड़ा सा हम अपन क्विकली देख लेते हैं कि सबसे बड़ा बात क्या है कि गेनिंग अटेंशन किसी भी उसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को यदि अटेंशन मिलेगा तो बहुत ही जरूरी है तो इसमें क्या आई कांटेक्ट वगैरह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ट्रेनर के ऊपर ये निर्भर करेगा कि भैया वो उस बंदे को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए और पहले का जो ट्रेनिंग मटेरियल दे रखा है तो उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देन इन्फॉर्मिंग द ट्रेनी ऑफ द गोल टू बिगिन टू फोकस ऑन द गोल्स और ये आजकल क्योंकि आई एम मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ प्रैक्टिकली 3 स्किल काउंसिल्स आप कैपिटल गुड सेक्टर स्किल काउंसिल का भी पावर सेक्टर स्किल काउंसिल का और अभी करंटली इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन सेक्टर स्किल काउंसिल का तो आजकल जो जितना भी जो नेशनल स्किल फ्रेमवर्क के हिसाब से जो आया तो आप देखोगे कि हर चीज का इस सेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है क्या की लर्निंग आउटकम है तो वो लर्निंग आउटकम एक एक छोटे छोटे मॉड्यूल का माइक्रो लेवल का भी आजकल प्लान किया हुआ है तो हर एक्टिविटी का गोल आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आज भी जैसे ये प्रोग्राम किया तो भैया एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन तीसरा जो कंपोनेंट है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रियर नॉलेज तो आपने देखा होगा ना कि कई बार जब क्लासेज होती हैं तो फर्स्ट सेशन में हमने क्या सीखा तो कई बार क्या होगा या तो ट्रेनर अपने आप समराइज करता है कि दिस वर द की लर्निंग्स हम लोगों ने देखी अदरवाइज क्या होगा कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट से वो पूछा जाता है कि भाई आप बताओ कल के सेशन में क्या रहा क्या की लर्निंग रही तो पर्पज इज कि बार बार रीइंफोर्स किया जाए टू रिट्रीव प्रियर लर्निंग टू वर्किंग मेमोरी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इवन कई बार मान लो आपने कोई एक सेशन प्लान किया लीडरशिप पे तो लीडरशिप के क्या कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन सी स्टाइल्स होती है लीडरशिप की तो सेशन शुरू होने से पहले ही ये पार्टिसिपेंट्स को एक हार्मोनी लाने में सिंक में लाने के लिए सारी चीजें की जाती है प्रेजेंटिंग द मटेरियल टू सेलेक्टिवली परस्यू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग फिर दूसरा यह है कि जैसे जब प्रेजेंटेशन होता है तो की पॉइंट्स क्या है उनको प्रॉपर ढंग से हाईलाइट करना उन पे ज्यादा डेलिब्रेट करना उन पे एग्जांपल्स देना दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट then providing learning guidance to consider how the new knowledge fits into the overall schema this is again very very आपने देखो बहुत सारी किताबें होती है तो उसमें नोट्स फॉर द ट्रेनर्स होते हैं नोट्स फॉर द ट्रेनी होता है तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो डिटेल डेलिब्रेशन बहुत जरूरी है देन एलिसिटिंग द परफॉर्मेंस कि एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस आ रही कि नहीं आ रही तो उसके लिए बीच बीच में इवेल्युएशंस करो आप लोगों से करवा के देखो आप देन प्रोवाइडिंग फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म मोर इफेक्टिवली बाय रेनफोर्सिंग करेक्ट रेस्पॉन्स एंड असिस्टिंग व्हेन इनकरेक्ट तो ये कंपोनेंट भी ट्रेनिंग का आपने देखा हो ज्यादातर केसेस में हर ट्रेनर कोशिश करता है और खास करके जो फिजिकल सेटिंग्स में तो ये ज्यादा होता है बट यहाँ पे भी फीडबैक के मामले में ये हो सकता है कि भाई इंडिविजुअल ट्रेनर का कितना
इन्वॉल्वमेंट ग्रुप के साथ रहा, इसी तरह से ट्रेनिंग का ट्रेनर के साथ किस तरह का रेपो रहा। तो ये एक एस्पेक्ट है जो ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। देन असेसिंग परफॉर्मेंस टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट हैज बीन लर्न्ड बाय कंप्लीटिंग सम प्री डिटरमाइंड एक्टिविटी। तो प्री डिटरमाइंड एक्टिविटी के अंदर आप यही हो सकता है कि आप लोगों से पूछो भाई कि एक टिपिकल सेशन ऑब्जेक्टिव में क्या क्या एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने चाहिए, लेट द ट्रेनीज डेलिब्रेट ऑन दिस। तो ये रीइंफोर्स हो जाता है बेसिकली, और इससे ट्रेनर को पता भी चल जाता है, इवन ट्रेनिंग को भी पता चल जाता है कि मेरी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर चीज में कैसी रही है। और जिनका परफॉर्मेंस लेवल कम रहता है उन पे आप एडिशनल रिसोर्सेज और दोबारा टाइम लगा के उनको ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल कॉम्पिटेंसी लेवल। देन एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। तो ये लास्ट में जैसे हमने देखा कि ये ऑन द जॉब प्रोजेक्ट्स ट्रेनीज को देते हैं, तो उससे क्या है कि ये ट्रांसफर भी होता है और रिटेंशन भी होता है। जब आप सीख के जाते हो तो व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग ना, एप्लीकेशन से आपकी लर्निंग जबरदस्त होती है। जैसे कल हम अपने गाड़ी ठीक कराने के लिए गए थे, क्लच प्लेट में उसमें इश्यू आ गया था। तो आप देखो कि आपने पूरी इंजीनियरिंग कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, बट आप यदि किसी कंपोनेंट को खोल दिया तो हो सकता है पहले तो खोल ही नहीं पाओ, और खोल भी दोगे, क्योंकि खोलने में क्या होता है कि कोई भी पुरानी चीज होती है तो दो नट बोल्ट इतने जंग लग जाएगी आप खोल नहीं पाओगे। और खोल दिया तो असेंबल तो जस्ट इम्पॉसिबल है। मैंने तो पूरी इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी जिस चीज को खोल दिया उसको मैं बंद नहीं कर पाया। बट एक मैकेनिक जो पूरा उसमें डीपली इन्वॉल्व होता है, आप देखोगे कि वो उसको बड़ी आसानी से खोल भी देता है, उसको ठीक भी कर देता है। तो बाय डूइंग, कंटिन्यूस डूइंग से ही आपकी प्रोफिशिएंसी बनती है। तो एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट डेफिनेटली इन्वॉल्व hands on working assignments and deeper level of engagement. And finally जो मेरा जो conclusion जो part रहेगा वो ये रहेगा कि ultimately it must be in the interest of the organizational goals, और projects ऐसे होने चाहिए कि जहां पे ये यूज हो। और ये एक और फ्रेमवर्क है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जितने भी जो आजकल स्किलिंग के लिए है, तो कोई भी जो सेशन ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ये 5-7 चीजें हैं टोटल, इनके 9 चीजें आप देखोगे। इसमें एक तो प्री रिक्विजिट क्या है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर करने से पहले प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या है। तो ये यदि सेशन भी प्लान कर रहे हो तो इस सेशन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए पार्टिसिपेंट का प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा है कि ट्रेनिंग आउटकम, इस सेशन का फाइनली आउटकम क्या निकल के आएगा, ये बड़ी वेल डिफाइन होना चाहिए। फिर ये मॉड्यूल नेम तो चलो ठीक है, सेशंस नेम, सेशन ऑब्जेक्टिव, देन नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड, कौन कौन से नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स का नॉलेज उसको होना चाहिए। फिर ये मेथोडोलॉजी, जैसे आपने यहाँ पे भी मेथोडोलॉजी के अंदर केस स्टडी है, आपका ग्रुप डिस्कशन है, रोल मॉडल है, ये सारे के सारे ट्रेनिंग टूल्स एंड एड्स क्या चाहिए वहां पे, और प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या चाहिए। तो इस पूरे ये गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग ए ट्रेनिंग डिलीवरी प्लान, तो ये लेटेस्ट गाइडलाइन ये लोग इन्होंने इशू किया है जो स्किल इकोसिस्टम में। बट इसमें भी जो कोर कंसेप्ट यही है कि 3 खास करके मोटे एस्पेक्ट बहुत जरूरी है कि प्रियर नॉलेज उसका किस लेवल का है, उसी के हिसाब से आप डिलीवरी प्लान करिए। ये नहीं कि उस नॉलेज लेवल उसका बहुत कम है और आपने बहुत हाई एंड ट्रेनिंग कंटेंट डिजाइन कर दिया, आपकी ट्रेनिंग फ्लॉप हो जाएगी, आपका पूरा सेशन। फिर उसका रियली आउटकम क्या है उस पूरी ट्रेनिंग का, और उस ट्रेनिंग के आउटकम में उस सेशन का क्या रोल रहेगा। तो ट्रेनिंग के अंदर उस सेशन का अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में ये देखा कि methodology plays a very very important role. यदि हाईली टेक्निकल प्रोग्राम है तो एक्सपेरिमेंट
डेमोज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एचआर के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ डायनेमिक्स है, तो रोल प्ले है, आपका ग्रुप डिस्कशन से एफजीडीज वगैरह आप कर सकते हो, इस सब से आपका आउटकम निकल के आ सकता है। और प्रॉपर ड्यूरेशन का होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद अब मैं आप लोगों से कुछ इनपुट्स ये चाहूंगा कि इसमें और क्या चीज हो सकता था। हाँ जी, रूपेश राय जी, आप कुछ बताइए सर। यस सर। कि इसमें और क्या कंपोनेंट ऐड हो सकता था, क्या चीज की डेफिशिएंसी रही, क्या है, ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम जब हम लोग मिलेंगे तो एक तो क्या है कि हम लोग रिकैप करेंगे इसका। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जब नेक्स्ट सेशन में आने से पहले वी विल गिव सम 5-10 मिनट्स टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, क्योंकि ये एक एटलीस्ट हम लोगों को जो आइस ब्रेक हो गया इस कंसेप्ट के बारे में। अब आप इसको अच्छे से जो एक तो रेफरेंस मटेरियल दिया है उसमें भी पढ़िए, इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल रहेगा, तो आप लोग उस पे पढ़ के आइएगा। और ये क्योंकि हम लोग टोटल कितने 5 पीपल आर देयर ना इन दिस प्रोग्राम, जो आज के डेट में जो थे हमारे पास, तो इसमें ये कर सकते हैं कि इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि 2 लोग सेशन प्लानिंग के जो इनिशियल एस्पेक्ट जो है वो देख सकते हैं, 2 लोग इसमें देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से टूल्स किस किस स्थिति में लगाए जा सकते हैं। और बाकी के जो लोग हैं, 1 या 2 लोग जो बचे हैं, वो लोग ये है कि अल्टीमेटली हाउ टू ट्रांसफर द लर्निंग्स टू द वर्क प्लेस सेटिंग, क्योंकि तभी तो उसका फायदा हुआ। अदरवाइज तो अभी तक तो सिर्फ पहले की फेजेज में तो वी आर कंज्यूमिंग रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट उसके बाद गिविंग बैक का भी तो टाइम आया ना भाई, आपने ज्ञान ग्रहण किया तो उसके बाद गुरु दक्षिणा भी तो चाहिए। तो यहाँ पे गुरु दक्षिणा किसको देनी है? ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने हम लोगों को इस लेवल काबिल समझा कि एक प्रोग्राम में नॉमिनेट किया। नॉमिनेट करने के बाद उतना खर्चा टीएडीए दिया, रहने का दिया, 3-4 दिन के लिए आपको ऑफ दिया। तो ये अब ये है कि फाइनली इट मस्ट बी ऑफ यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो हाउ टू ट्रांसफर दिस लर्निंग इनटू ए रियल प्रोडक्टिव आउटकम। तो इन 3 लेवल्स पे आई थिंक डिसाइड कर सकते हैं। और आप अपना टीम बना करके आप मेरे को एक अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि किस किस तरह से किस किस पे काम करेगा। तो कौन इसमें वॉलंटियर करेगा टू कोऑर्डिनेट दिस पर्टिकुलर स्मॉल टास्क? एनी वॉलंटियर? मैं कर लूंगा सर, आई विल डू, बट इसमें 3 फेजेस में होंगे ना सर, इनिशियल और हाँ, बेसिकली ये ना कि भाई एक तो इनिशियल पार्ट ऑफ सेशन प्लानिंग का कौन देखेगा, उसके बाद टूल्स टेक्निक्स कौन देखेगा, और फाइनली जो सबसे एक जो अहम मुद्दा आता है कि भाई ट्रेनिंग भी कर ली, बढ़िया भोजन भी कर लिया, अच्छा रह भी लिए, सब कुछ हो गया, तो फाइनली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स है कि रियल ट्रांसफर जो है वो कैसे इसका होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो उसके लिए क्या टूल्स होने चाहिए, किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं, उनका फॉलोअप कैसा होना चाहिए, हाउ टू इन्वॉल्व, क्योंकि ओनरशिप एक तो जो जाएगा उसको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, प्लस ही मस्ट गेदर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट आल्सो। होता क्या है कि बॉस लोग ने ट्रेनिंग के लिए तो भेज दिया, बट जाके कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग करना भी चाहेंगे, तो कहेंगे यार ये तो छोड़, पहले तू अपने जो इतना पेंडिंग काम को करो। 1-2 बार बंदा बॉस को बताएगा सर हम ये सीख के आए, ये प्रोजेक्ट करना चाहें, बॉस उसको बहुत ही कोल्ड रिस्पॉन्स देगा, एंड विद द रिजल्ट कुछ टाइम बाद वो ट्रेनिंग कोल्ड स्टोरेज में चली जाएगी। ना ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ, ना इंडिविजुअल को थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो गया, बट अदरवाइज वो इफेक्टिवनेस नहीं आती ट्रेनिंग की। तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत स्टडी नेट पे करके और एक एक स्लाइड पे या एक एक कुछ पॉइंट्स बना करके आप लोग शेयर कर दीजिए अगले सेशन में। ठीक है सर। ठीक है ना सर? बल्कि तीनों पॉइंट्स पे सभी लोग 1-1 2-2 पॉइंट शेयर करें तो बेटर होगा, तो मोर पॉइंट्स विल। हाँ, कोई इशू नहीं। देखिए ऐसा ना कि आप पॉइंट्स तो किसी से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग लीजिए, बट ये जैसे जो टीम बनाई भाई 2-2 की जैसे है,
तो ये टीम्स कैन टेक इनपुट्स फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। कोई वो एक अच्छी चीज है, तो क्योंकि जितने Right, व्यू right, पॉइंट्स आपको मिलेंगे एक चीज मिलेगी, बट उसकी जो ओनरशिप है वो एक या दो लोग आप आइडेंटिफाई कर लो कि भाई इन पॉइंट पे ये ग्रुप करेगा, इस पॉइंट पे ये ग्रुप करेगा, और इस पॉइंट पे ये ग्रुप करेगा। तो 3 पॉइंट जो आपने अपने लिए रखे हैं उसके जी, हिसाब से इसको कर लीजिए। और बाकी का कोई और any questions you want to ask or any suggestions you want to give, I'll be too happy to receive that. no sir, it's okay. Yeah, तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, बहुत sir. अच्छा Thank लगा you. आप लोगों से इंटरेक्ट करके, इतने बड़े रिच एक्सपीरियंस वाले ग्रुप के साथ, तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट। thank you sir, thank you very much. एंड इन्वॉल्वमेंट भी आप लोगों का बहुत अच्छा रहा। संध्या मैम, बहुत बढ़िया, आप इतनी दूर हैदराबाद से और 32 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके आप काम कर रहे हैं LIC जैसी जाइंट के साथ। इट्स ऑनर। बहुत बढ़िया, चलिए। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Thank थैंक you, यू, sir. गुड Thank बाय, you, बाय sir. बाय बाय। Thank you, guys. We'll have a lunch break now. And थैंक यू we'll meet- के सर, थैंक यू। इट वाज ए वंडरफुल ग्रुप, आई टेल यू, बहुत ही प्यारा ग्रुप था। ये लोग इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, आई रियली एंजॉयड। एंड Thank you very much, sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, Bye बाय bye. बाय। See you at 2 o'clock. ओके, थैंक यू सर।